سب سے پہلے دلچسپ معلومات دیکھنے والے سبھی دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ میں سے بہت سے دوست جانتے ہوں گے کہ دلچسپ معلومات یوٹیوب چینل اور جانی ٹی وی یوٹیوب چینل کی ویڈیوز آپ لوگوں تک ایک ہی ٹیم پہنچا رہی ہے۔ کافی مصروفیات کی وجہ سے ویڈیوز ہمیشہ تاخیر کا شکار ہو جاتی تھی، لیکن اب ہم معلومات کا ایک نیا سلسلہ لے کر دلچسپ معلومات یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اگر ہمارا یہ سلسلہ آپ دوستوں کو پسند آئے تو یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس جلد سے جلد پہنچتی رہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والے تقریباً سبھی دوست یہ بات لازمی جانتے ہوں گے کہ کویتی دینار، بحرینی دینار، عمانی ریال، ڈالر، پاؤنڈ اور یورو کو دنیا کی طاقتور ترین کرنسیوں کا اعزاز حاصل ہے، لیکن جب بات سامنے آتی ہے پاکستانی روپے کی تو بہت سے دوستوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کاش ہماری کرنسی بھی انہی کے مد مقابل آ جائے، لیکن آپ لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ دنیا کے 10 ممالک پاکستان سے کرنسی کے حوالے سے بہت کمزور تصور کیے جاتے ہیں۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے 10 ایسے ممالک کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں جہاں پر پہنچتے ہی آپ اپنے آپ کو کروڑ پتی یا ارب پتی آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ کمزور کرنسی والے ممالک میں 10ویں نمبر پر آنے والے ملک کا نام کمبوڈیا ہے۔ یہ ملک جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ہے اور اپنی سرحدی حدود ویتنام، لاؤس اور تھائی لینڈ سے ملائے ہوئے ہے۔ 9 نومبر 1953 کو یہ ملک فرانس سے آزاد ہوا تھا۔ 1953 سے 1975 تک اس ملک میں ریل کرنسی کا استعمال ہوتا رہا۔ پھر خمیر روج 1975 سے 1980 کے عرصے تک کمبوڈیا کی سرکاری کرنسی کہلائی گئی۔ 1993 سے 1999 تک ایک مرتبہ پھر سے روج کو ملکی کرنسی کا اعزاز ملا۔ 1980 سے 1993 تک اور 1999 سے آج تک کمبوڈیا میں استعمال ہونے والی کرنسی کو کمبوڈین ریل کا نام ملا۔ آج اگر آپ پاکستانی کرنسی سے کمبوڈین کرنسی کا موازنہ کریں تو ایک پاکستانی روپے کے بدلے میں 30.76 ریل بن جائیں گے، یعنی اگر آپ کے پاس 1000 پاکستانی روپے ہوں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس 30,762 کمبوڈین ریل ہیں۔ اسی کو اگر ہم بھارتی کرنسی میں تبدیل کریں تو ایک بھارتی روپے کے بدلے میں آنے والے ریل کی تعداد 55.66 ہوگی، یعنی ایک امریکی ڈالر ہو تو بھارتی 73.50 روپے بنیں گے، پاکستانی 132.97 روپے ہوں گے، جبکہ کمبوڈین 4088 ریل ہوں گے۔ کمبوڈین ریل 50، 100، 200 اور 500 کے سکوں، جبکہ 50، 100، 500، 1000، 2000، 5000، 10,000، 20,000 اور 50,000 کے بینک نوٹس میں دستیاب ہوتے ہیں۔ کمزور کرنسی والے ممالک میں 9ویں نمبر پر آنے والا ملک پیراگوئے ہے۔ پیراگوئے جنوبی امریکہ میں واقع ایک زمین بعد ملک ہے جس کی سرحدی حدود برازیل، ارجنٹینا اور بولیویا سے ملتی ہے۔ اقوام متحدہ نے پیراگوئے کی آزادی کو 1945 میں تسلیم کیا تھا، جبکہ پیراگوئے نے اپنی کرنسی کو سکوں کی صورت میں 1944 میں ہی جاری کر دیا تھا، جبکہ بینک نوٹ 1943 میں ہی جاری کر دیے گئے تھے۔ پیراگوئے کی موجودہ کرنسی کو گوارانی کہا جاتا ہے۔ ایک پاکستانی روپے کے بدلے میں آنے والے گوارانی کی تعداد 44.85 ہے، جبکہ ایک انڈین روپے کے بدلے میں آنے والے گوارانی کی تعداد 81.12 ہے، جبکہ ایک امریکی ڈالر کے بدلے میں آنے والے گوارانی کی تعداد 5,961 ہوگی۔ یعنی یوں کہیں کہ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ پاکستانی روپے ہوں تو آپ 44,85,035 گوارانی کے مالک بن جائیں گے۔ کمزور کرنسی والے ممالک میں 8ویں نمبر پر آنے والے ملک کا نام ازبیکستان ہے۔ 26 دسمبر 1991 کو ازبیکستان کی سوویت یونین سے آزادی کو تسلیم کر لیا گیا تھا۔ آزادی کے بعد اس ملک میں روسی روبل کا استعمال ہوتا رہا، لیکن آزادی کے دوسرے سال 15 نومبر 1993 کو روبل کی جگہ سوم ملکی کرنسی جاری کی گئی۔ ازبیک سوم کے کوئن مختلف قیمتوں میں بنائے گئے، مگر زیادہ تر استعمال ہونے والے سکوں میں 50، 100، 200 اور 500 کے سکے ہیں، جبکہ زیادہ استعمال ہونے والے نوٹوں میں 200، 500، 1000، 5000، 10,000 اور 50,000 سوم شامل ہیں۔ ایک پاکستانی روپے کے بدلے میں آنے والے سوم کی تعداد 61.98 ہے، جبکہ ایک انڈین روپے کے بدلے میں 112 سوم حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اسی لحاظ سے اگر ازبیکستانی کرنسی کو امریکی ڈالر سے تولا جائے تو ایک ڈالر کے بدلے میں آنے والے سوم کی تعداد 8,241 ہوگی۔ کمزور کرنسی والے ممالک کی فہرست میں
7वें नंबर पर आने वाले मुल्क का नाम है सीरा लियोन। ये मुल्क मगरबी अफ्रीका में गनी, लाइबेरिया और बहरा ओकियानूस के दरमियान वाक़या है। इस मुल्क ने 27 अप्रैल 1961 को बरतानवी राज से आज़ादी हासिल की थी। आज़ादी के बाद साल 1964 में पहली बार बैंक ऑफ सीरा लियोन ने लियोन्स करेंसी का इजरा किया, जो नोटों और सिक्कों दोनों की शक्ल में दस्तयाब थी। आज इस मुल्क में ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले सिक्के 10, 50, 100 और 500 के हैं, जबकि बैंक नोट ज्यादातर 1000, 2000, 5000 और 10,000 के ही इस्तेमाल किए जाते हैं और 10,000 से बड़ा करेंसी नोट इस मुल्क में नहीं है। अगर इस मुल्क की करेंसी का पाकिस्तानी रुपयों से मुवाजना किया जाए तो एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में आने वाले लियोन्स की तादाद 63.55 होगी, जबकि एक इंडियन रुपए के बदले में हासिल होने वाले लियोन्स की तादाद 114.94 होगी, जबकि एक अमेरिकी डॉलर के बदले में 8,450 लियोन्स हासिल किए जा सकते हैं। कमजोर करेंसी वाले ममालिक में 6ठे नंबर पर आने वाले मुल्क का नाम है लाओस। लाओस जो कि चीन, बर्मा, कैम्बोडिया, वियतनाम और थाईलैंड से अपनी सरहदी हदूद मिलाए हुए है। इस मुल्क ने 19 जुलाई 1949 को फ्रांस से आज़ादी हासिल की थी। साल 1952 में इस मुल्क में कीप करेंसी का इजरा हुआ और आज तक यही करेंसी इस मुल्क में इस्तेमाल की जाती है। हालांकि मुख्तलिफ हुकूमतों में नोटों के साइज को बड़ा या छोटा और नए नोट लाजमी जारी किए गए हैं। लाओ कीप ज्यादातर 100, 500 से लेकर 50,000 तक देखने को मिलते हैं, जबकि इनके सिक्के 10, 20 और 50 के ही होते हैं, जो आजकल कदरे कम ही इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि महंगाई के इस दौर में कोई भी चीज़ इन सिक्कों से नहीं खरीदी जा सकती। लाओस की करेंसी का अगर पाकिस्तानी करेंसी से मुवाजना किया जाए तो एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में आने वाले कीप की तादाद 64.40 होगी, जबकि एक इंडियन रुपए के बदले में आने वाली कीप की तादाद 116.55 होगी और एक अमेरिकी डॉलर के बदले में आने वाले कीप की तादाद 8,563 होगी। कमजोर करेंसी वाले ममालिक में 5वें नंबर पर आने वाले मुल्क का नाम है जमहूरिया गनी। ये अमूमी तौर पर फ्रांसीसी गनी भी कहलाया जाता है, क्योंकि फ्रांस ने ही यहाँ की आबादकारी में और इस इलाके की तामीर और तरक्की में एक किरदार अदा किया था। तभी तो फ्रांसीसी जुबान और करेंसी को इस मुल्क में जगह मिली। माली, सिंगाल, गनी बिसाओ और बहरा ओकियानूस के दरमियान वाक़े इस मुल्क को 2 अक्टूबर 1958 को फ्रांस से आज़ादी नसीब हुई थी। आज़ादी के अगले साल यानी 1959 में CFA फ्रांक का इस्तेमाल अफ्रीकी ममालिक में आम होने लगा। अफ्रीका के मकबूजा और आज़ाद ममालिक सभी इस करेंसी को इस्तेमाल करने लगे। उस दौर में अफ्रीका के 14 ममालिक इस करेंसी का इस्तेमाल करते थे। 1985 में जमहूरिया गनी ने गनी फ्रांक जारी किया, जो गनी के अलावा किसी दूसरे अफ्रीकी मुल्क में इस्तेमाल नहीं होता है। इस मुल्क की करेंसी की मौजूदा सूरत हाल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में हासिल होने वाले फ्रांक की तादाद 68.34 होगी, जबकि एक इंडियन रुपए के बदले में 123.67 फ्रांक हासिल किए जा सकते हैं और एक अमेरिकी डॉलर के बदले में आने वाले फ्रांक की तादाद 9,085 होगी। इसी सिलसिले में चौथे नंबर पर आने वाले मुल्क का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जिसे 17 अगस्त 1945 के रोज हॉलैंड से आज़ादी नसीब हुई थी। 26 करोड़ 50 लाख अफराद की आबादी के साथ इंडोनेशिया को दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुस्लिम मुल्क माना जाता है। 1946 से अब तक इस मुल्क में चलने वाली करेंसी को इंडोनेशियन रुपए का नाम दिया गया है। आजकल एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में हासिल किए जाने वाले इंडोनेशियाई रुपयों की तादाद 114.26 होगी। यानी अगर आपके पास 1 लाख पाकिस्तानी रुपए हों तो आप इंडोनेशिया में करोड़पति तस्वर किए जाएंगे, क्योंकि 1 लाख पाकिस्तानी रुपयों के बदले में हासिल किए जाने वाले इंडोनेशियन रुपयों की कीमत 1,14,25,501 होगी। अगर इंडियन करेंसी से हिसाब किया जाए तो एक इंडियन रुपए के बदले में हासिल किए जाने वाले इंडोनेशियन रुपयों की तादाद 206 होगी, जबकि एक अमेरिकी डॉलर के बदले में 15,187 इंडोनेशियन रुपए आ जाएंगे। इंडोनेशिया की करेंसी का छोटे से छोटा बैंक नोट 1000 का है और बड़े से बड़ा 1 लाख का है। कमजोर करेंसी वाले ममालिक में दुनिया की तीसरी कमजोर करेंसी का एजाज साओ टोमे और प्रिंसिपे के पास है। यह मुल्क खलीज गनी में 2 जजीरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा मुल्क है, जिसका रकबा 964 मरबा किलोमीटर है। 2 लाख अफराद की आबादी रखने वाले इस मुल्क ने 12 जुलाई 1975 को पुर्तगाल से आज़ादी हासिल की। इस मुल्क की करेंसी को साओ टोमे दोबरा कहा जाता है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में हासिल किए जाने वाले दोबरा की तादाद
160 होगी, जबकि 1 इंडियन रुपए के बदले में आने वाले दोबरा की तादाद 289 होगी। इसी हिसाब से अगर 1 अमेरिकी डॉलर से इस मुल्क की करेंसी का मुआवजा किया जाए तो बदले में हासिल होने वाले दोबरा की तादाद 21,280 होगी। यानी 1000 पाकिस्तानी रुपयों के बदले में 1,60,034 दोबरा हासिल किए जा सकते हैं। अफ्रीका में वाकई ये एक मसीही आबादी रखने वाला मुल्क है, जिसके बारे में बहुत जल्द आप वीडियो हमारे दूसरे चैनल जानी टीवी पर देख सकेंगे। कमजोर करेंसी वाले ममालिक के सिलसिले में दुनिया की दूसरी कमजोर तरीन करेंसी रखने वाला मुल्क वियतनाम है, जहां की करेंसी को वियतनामी डोंग कहा जाता है। वियतनाम जिसने 2 सितंबर 1945 को फ्रांस से आजादी हासिल की थी। वियतनाम अपनी सरहदी हदूद लाओस, चाइना और कैम्बोडिया से मिलाता है, जबकि वियतनाम की समुद्री हदूद थाईलैंड, फिलीपीन, मलेशिया और इंडोनेशिया से मिलाता है। अपनी आजादी के बाद कई साल तक इस मुल्क को वियतनाम जंग का सामना करना पड़ा। वियतनाम जंग के खत्म होने के बाद जब यह मुल्क मुआशी लिहाज से मजबूत होने लगा तो स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम की जानब से वियतनामी डोंग इस मुल्क में पहली मुल्की करेंसी जारी की गई, जो सिक्कों और नोटों दोनों की शक्ल में थी। साल 2012 से सिक्कों का राज इस मुल्क से तकरीबन खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर सिक्के अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं। वियतनाम का मौजूदा छोटे से छोटा करेंसी नोट 100 का है, लेकिन ज्यादातर 1000 वाले करेंसी नोट को ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कोई भी चीज अब 100 वाले नोट की पहुंच तक नहीं रही। जबकि इस मुल्क में बड़े से बड़ा करेंसी नोट 5 लाख का है। वियतनाम आज मुआशी लिहाज से उभरने वाले ममालिक में शुमार हो रहा है। बेशक वियतनाम कमजोर करेंसी रखने वाला मुल्क है, मगर खुशहाली इस मुल्क की आवाम के कदम चूमती है। गैर मुल्की वियतनाम को बहुत ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि वियतनाम का शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है जहां रहाइश और खाना बहुत सस्ता होता है। वियतनाम की करेंसी का अगर पाकिस्तानी रुपयों से मुवाजना किया जाए तो 1 पाकिस्तानी रुपए के बदले में हासिल होने वाले डोंग की कीमत 175 होगी, जबकि 1 इंडियन रुपए के बदले में हासिल होने वाले डोंग की तादाद 318 होगी। इसी हिसाब से 1 अमेरिकी डॉलर से अगर इस करेंसी का मुवाजना किया जाए तो हासिल होने वाले वियतनामी डोंग 23,392 होंगे। अगर हम बात करें दुनिया की कमजोर करेंसी रखने वाले मुल्क की, तो इस सिलसिले में ईरान को दुनिया की कमजोर तरीन करेंसी रखने वाला मुल्क कहा जाता है। ईरान जो कि पाकिस्तान के मगरबी हिस्से में वाक़या है, पहले इस मुल्क में तोमान करेंसी का इस्तेमाल हुआ करता था। तोमान से पहले दिनार, मगर आजकल इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को ईरानी रियाल कहा जाता है। ये रियाल सिक्कों और नोटों दोनों शक्लों में दस्तयाब होते हैं। ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले सिक्के 50, 100 और 250 रियाल के होते हैं, जबकि बैंक नोट छोटे से छोटा 100 रियाल का, जबकि बड़े से बड़ा 1 लाख रियाल का होता है। ईरान की करेंसी ईरान के अलावा अफगानिस्तान के जनूबी हिस्सों, इराक और सीरिया के कुछ हिस्सों में भी इस्तेमाल की जाती है। अगर ईरानी रियाल का पाकिस्तानी करेंसी से मुवाजना किया जाए तो 1 पाकिस्तानी रुपए के बदले में हासिल होने वाले ईरानी रियाल की कीमत 316 होगी, जबकि इंडियन रुपयों के साथ मुवाजना करें तो 1 रुपए के बदले में हासिल होने वाले रियाल की तादाद 572 होगी। इसी मुनासबत से अगर 1 अमेरिकी डॉलर के बदले में रियाल हासिल किए जाएं तो हासिल होने वाले रियाल की कीमत 42,105 होगी। यहाँ एक दिलचस्प बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी रखने वाले मुल्क का एजाज भी एक मुस्लिम मुल्क के पास है, और दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी रखने वाला मुल्क भी एक मुस्लिम मुल्क है। दुनिया की कमजोर करेंसी वाले ममालिक में इस्लामी मुल्कों की तादाद 5 है, जबकि दुनिया की पहली 4 ताकतवर तरीन करेंसियां रखने वाले ममालिक इस्लामी ममालिक हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। आप हमसे किस मौजू पर मालूमाती वीडियोस चाहते हैं, बराए मेहरबानी कमेंट की सूरत में अपनी तजावीज़ ज़रूर अरसाल कीजिएगा। हम आइंदा से मालूमात के इस सिलसिले को टूटने नहीं देंगे, बल्कि हर हफ्ते में 3 वीडियोस पेश करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगली वीडियो तक अपने इस दोस्त मोहम्मद नबील को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।